Hello dear students, you are all most welcome to today's chemistry class. Today we will be continuing with the same topic, that is surface chemistry, and this is second lecture. बहुत important topic, very interesting topic. So before going to start today's class, आज क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, ताकि मेमोरी रिफ्रेश हो जाए, दोबारा सारी चीज़ याद आ जाए, ताकि हम अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें. ठीक है. सो इन द फर्स्ट क्लास, that is the previous class, we had discussed about the surface chemistry. It is the branch of physical chemistry which deals with the study of composition, properties and the processes taking place on the surface of or at the interface of different substances, right. And the most important and exciting phenomena that is taking place on the surface of a substance is called as adsorption. So, adsorption is the phenomenon, surface phenomenon, that is the process in which there is attraction and retention of one substance on the surface of another substance. The substance which is adsorbed is called as adsorbates. The adsorbates can be solid, liquid or gas. And the surface where adsorption takes place, the surface where adsorption takes place is called as adsorbents. Adsorbents. Adsorbents can be solid, liquid or gas. Next we discussed about absorption. It is the process in which the molecule, one substance or the molecule of one substance enters into the bulk of another substance, so that the concentration in the bulk is more and concentration on the surface is less. For example, ammonia is adsorbed by activated charcoal, ammonia is absorbed by water. दोनों में बहुत अंतर है. This is absorbed means dissolved, bulk में ज़्यादा है, यहाँ पे surface में ज़्यादा है. ये सब हम पढ़ चुके हैं. Next is sorption. What is sorption? It is the process where both adsorption and absorption, both processes are taking place at a time simultaneously. जैसे कि डाइंग ऑफ क्लॉथेस, ये जो क्लॉथेस है वो डाइंग हो रहे हैं ना, कलरिंग हो रहे हैं, ये तुम्हारा सॉर्प्शन प्रोसेस है. एडसॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी साथ साथ में हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस साथ साथ में चल रहा है. ऑक्लूजन और मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस से गैसेस एडसॉर्ब हो रहे हैं, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है ऑक्लूजन. जैसे कि हाइड्रोजन गैसेस एडसॉर्ब बाय पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल मेटल्स, राइट. देन वी डिस्कस्ड अबाउट कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन का रीजन क्या है? इन केस ऑफ adsorbents, the adsorbents have some residual or unbalanced force acting on the surface molecules, that is they are in a higher state of energy. So that is why to stabilize themselves, to satisfy those unbalanced forces, so they attract the other molecules and retain them on the surface, so that their forces can be balanced, right. In case of a metal, some unsatisfied valencies are left on the surface. That is why it attracts others to satisfy those unsatisfied valencies. Here are origin. Next types of adsorption, physical adsorption or chemical adsorption, means physioabsorption और chemisorption. ठीक है, उसके ऊपर में हम सारे के सारे बातें चर्चा कर चुके हैं. नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडसॉर्प्शन, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, टेम्परेचर और प्रेशर. ये सारे के सारे फैक्टर्स के ऊपर तुम्हारा जितने सारे एडसॉर्प्शंस होते हैं, दे ऑल डिपेंड अपॉन दिस 4 फैक्टर्स, राइट. तो चलिए आज का जो डिस्कशन करने का जो टॉपिक है, इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पहले एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए सिर्फ नहीं है, तुम्हारे जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे. पहले एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन क्या क्या एप्लीकेशंस है,
और उसके बाद कैटालिसिस एंड कैटालिस्ट, ये तीनों पोर्शन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। राइट, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। आइसोथर्म मान लीजिए एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम कोशिश करेंगे कि कुछ एडजॉर्बेंट लेंगे, वी विल टेक सम एडजॉर्बेंट and some adsorbate, and we will see how pressure plays important role, how plays important role in increasing the adsorption. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो द अमाउंट ऑफ गैस, पर्टिकुलरली गैस एडजॉर्प्शन हो रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड एडजॉर्बेंट, how the pressure controls or how the pressure affects the adsorption rate or amount of gas adsorbed on the surface of a adsorbent, right? So that is called a adsorption isotherm. So many adsorption isotherms are there, but उससे हम एक ही adsorption isotherm के बारे में डिस्कस करेंगे, that is your Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm क्या है? Freundlich adsorption isotherm जरा सुनिए। तो Freundlich adsorption isotherm deals with the adsorption of gases. Adsorption of gases means adsorbates are gases on the surface of solid adsorbents. क्योंकि दुनिया में जितने सारे एडजॉर्प्शन प्रोसेस हम देख रहे हैं, ज़्यादातर एडजॉर्प्शन प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? गैसेस आर नॉर्मली एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड एडजॉर्बेंट्स। वो हमारा काम की चीज़ है, इसीलिए ज़्यादा ध्यान हम उसके ऊपर ही देते हैं कि कैसे बढ़ाया जाए एडजॉर्बेंट के ऊपर, एडजॉर्प्शन को कैसे बढ़ाया जाए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल को कैसे एडजॉर्ब किया जाए, क्या क्या फैक्टर्स है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च भी होते हैं। उसी से एक इक्वेशन Freundlich adsorption isotherm, इट इज एन एम्पिरिकल और थियोरिटिकल इक्वेशन। सुन लीजिए, तो Freundlich adsorption isotherm इज ए थियोरिटिकल और एम्पिरिकल इक्वेशन। वो बताता है कि हाउ द magnitude or how the quantity of gases to be adsorbed on the given quantity of or given mass of adsorbent, adsorbent का कुछ मास लिया, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ लिया, उसी क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्बेंट से हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस को एडजॉर्ब कर सकते हैं टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर को चेंज करके हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। So Freundlich adsorption isotherm is a theoretical or empirical equation that gives the equation between or relationship between quantity of gas adsorbed by given amount of a solid adsorbent and the role of pressure on it. And the equation is जरा देखिए यहाँ से, and the equation is x by m equal to k into p to the power 1 by n. So this is the Freundlich adsorption isotherm. What is x by m? What is x? X is the amount of gas adsorbed, ठीक है, amount of quantity of gas adsorbed, and m is the mass of adsorbent, that is x by m means per unit mass of adsorbent, how many grams or how many quantities of gases are adsorbed, ठीक है। What is k? K is a constant, right? And it is called as a adsorption capacity, कैपेसिटी। उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, एडजॉर्प्शन कैपेसिटी। एंड व्हाट इज एन? एन इज ए कांस्टेंट, कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन इंटेंसिटी,
ये रहा तुम्हारा, और x by m मीन्स अमाउंट ऑफ गैस adsorbed पर यूनिट ग्राम ऑफ adsorbent, राइट. सो देखो, at low pressure, how this equation is derived and what is the significance of this equation, we will discuss in detail. देखो, at low pressure, when pressure is low, कोई दबाव नहीं है, अगर x by m, देखो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, गैस को हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, तो अगर उसी लो प्रेशर में ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन हो रहा है. देखो, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में अगर ज़्यादा प्यार है, अच्छा रिश्ता है, तो बिना प्रेशर से अगर वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा बिना दबाव से, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, कोई फैमिली का प्रेशर नहीं है, कोई गार्डियन का प्रेशर नहीं है, अगर वो खुद पढ़ाई कर रहा है, ऑटोमेटिकली पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसमें थोड़ा सा अगर हम प्रेशर देंगे, तो जितना दबाव डालोगे वो आराम से वो सब कर पाएगा. मीन्स अगर जो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली लो प्रेशर से हो रहा है, अगर प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन क्वांटिटी तो बढ़ेगा ना. जो बच्चा खुद पढ़ रहा है, कोई बिना दबाव से पढ़ रहा है, आप उसको कितना भी प्रॉब्लम दे दो, कितना भी होमवर्क दो, वो आसान से कर सकता है और उसका इंटरेस्ट भी पैदा होता जाएगा. ठीक है. सो इसीलिए एट लो प्रेशर x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, मीन्स p के ऊपर पावर 1. सिमिलरली एट हाई प्रेशर प्रेशर दे दिया, प्रेशर बढ़ाया, अगर हाई प्रेशर में किसी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मान लो कोई बच्चा हाई प्रेशर में पढ़ाई कर रहा है, दबाव देने से पढ़ाई करेगा, तो ज़्यादा दबाव डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. तो दैट इज इफ एट हाई प्रेशर, देखो प्रेशर आप बढ़ाते गए, एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया, और एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर देने से और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो एक्टिव साइड्स होते हैं ना, जो एब्जॉर्बेंट के ऊपर जो साइड्स होते हैं, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो सब फिलअप हो गया. मान लो जितने सीट्स थे, अब तो सब फिलअप हो गया, और ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा. सो x by m अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मीन्स p टू द पावर 0. मीन्स प्रेशर का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, जितना प्रेशर दे कोई फायदा नहीं. तो देखो, ये हाई प्रेशर में ये रहा p के ऊपर पावर 0, इसके ऊपर ध्यान दो, और लो प्रेशर में रहा p के ऊपर 1. ठीक है. थर्ड में एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स, क्या होगा बोलो? एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर्स क्या होगा इक्वेशन? देखो, लो प्रेशर में इसी प्रेशर के पावर के ऊपर देखो, लो प्रेशर में पावर p के ऊपर पावर 1 होता है, एंड एट हाई प्रेशर द पावर ऑन प्रेशर इज 0. दैट मीन्स द पावर ऑन प्रेशर लाइज बिटवीन 0 to 1. 0 कब होता है? हाई प्रेशर में 0 होता है. 1 कब होता है? लो प्रेशर में. और बीच वाला जितना प्रेशर्स होंगे, तो बताओ इसका वैल्यू किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में. आई बात समझ में? लो प्रेशर में p के ऊपर पावर 1, हाई प्रेशर में p के ऊपर पावर 0. बीच वाला क्या होगा? जो p के ऊपर जो पावर होगा वो 1 से 0 के बीच में होगा. तो 1 के बीच में और 1 और 0 के बीच में जितने सारे नंबर्स आते हैं वो सब तो फ्रैक्शंस होते हैं. इसीलिए x by m is proportional to p to the power 1 by n, right? So that means x by m equal to k into p to the power 1 by n, right? So 1 by n का वैल्यू किस के बीच में रहेगा? It is 0 less than equal to 1. So between 0 to 1 this value lies, right? So to remove this proportionality, we have to put a constant here. So x by m equal to k into p to the power 1 by n. So this is Freundlich adsorption isotherm. This is equation, and let us solve it further. Take logarithm log x by m. If I take log of on both sides, so that will equal to log k into p to the power 1 by n
log m into n means log k plus log p to the power 1 by n. Log m to the power n means log n log m, that we know. So log k plus 1 by n log p. So the final equation is log x by m equal to log k plus 1 by n log p, right? So if we plot a graph between log x by m and log p, you see it is y equal to mx plus c, So this is y equal to mx plus this is c. So this is m. So we will get a graph like this, whose slope is equal to 1 by n, and this intercept equal to log k. Okay. This is the first graph. समझ में आई? देखो, first graph is between log x by m and log p. बहुत important. Second, so this is from, you should just look into this equation. At low pressure, x by m means amount of gas adsorbed per unit gram of adsorbent is p to the power 1. P, that is, it is directly proportional to p. So that is, it follows first order kinetic. बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक. And at a high pressure, P के ऊपर power 0 means it is zero order kinetic. High pressure में zero order, low pressure में first order. अब बीच वाला क्या होगा बताओ? फ्रैक्शनल ऑर्डर ही होगा. अगर दूसरे ग्राफ में हम देखेंगे तो if we plot a graph between pressure along x axis and x by m along y axis, देखो ये रहा इक्वेशन, ठीक है, p to the power 1 by n. What will is, sorry, not p to the 1, p, सिर्फ और p. What will is the nature of a graph? You see, when pressure is low, 1, 2 ऐसे लिखना, प्रेशर बढ़ता गया, ठीक है. When pressure is low and if you increase the pressure, you see the amount of gas adsorbed, the adsorption increases rapidly. प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाने से ज़्यादा बढ़ रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और धीरे धीरे देखो और ऐसा बनता गया, कांस्टेंट हो गया, मान लो कांस्टेंट हो गया. ये रहा तुम्हारा सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है. सैचुरेशन प्रेशर मीन्स इसी प्रेशर के बाद और जितना भी प्रेशर दो कोई फायदा नहीं है और एब्जॉर्प्शन होने वाला नहीं है. देखो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ तक फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ तुम्हारा आ गया जीरो ऑर्डर. दिस इज जीरो ऑर्डर. Once it attains saturation pressure, that is automatically it starts following zero order kinetic and pressure बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, right? So next is your applications of adsorption. हम adsorption क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा मिल रहा है, कहाँ उसका applications है, कहाँ वो यूज हो रहा है, और आम जिंदगी में उसका क्या रोल है. आप देखिए, जो बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ ना, बोर्ड में जो मैं लिख रहा हूँ वो कौन सा प्रोसेस है भाई, वो तो एब्जॉर्प्शन ही है, अट्रैक्शन है, रिटेंशन. वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए तो हम कुछ लिख पा रहे हैं, आप तो कुछ पढ़ पा रहे हैं. अब जो लिख रहे हैं पेपर से, पेन से हो, पेंसिल से हो, ड्राइंग बना रहे हो, उसको क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं ना. और जो किताब हम छापते हैं, जो प्रिंटिंग करते हैं, जो जेरॉक्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको क्या है, एब्जॉर्प्शन नहीं तो और क्या. हमारा लेडीज गर्ल्स सब नेल पॉलिश लगा रहे हैं ना, आईब्रो शेपिंग कर रहे हैं ना, लिपस्टिक लगा रहे हैं, सो क्या है भाई, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस. था ऐसे बहुत सारे, हम हेयर को डाई करते हैं ना, वो तो एब्जॉर्प्शन है. जब ये जो है ना, जो कपड़े हम पहनते कलर के कपड़े, वो सब तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही बनते हैं, राइट. और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ये तो हम जानते हैं, और कुछ स्पेशल प्रोसेसेस जैसे गैस मास्क. आजकल तो हम मास्क पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस, लेकिन वो जो गैस है ना, वो गैस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वायरस को प्रोटेक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दैट स्मॉल पैसेज. लेकिन जहाँ गैस है, मान लो कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, हेवी क्राउडेड ट्रैफिक, आगे पीछे
बहुत ही ताज़ा से गाड़ी आगे पीछे जा रहे हैं, जानते हो गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, जो एग्जॉस्ट जो गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं कितने कितने पॉइजनस गैसेस, वहाँ पे जो पुलिस और जो काम कर रहे हैं, जब मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके जान और जिंदगी कितने खतरे में पड़ जाता है, इसलिए उनको मास्क दिया जाता है पहनने के लिए। दैट मास्क कंटेन्स एक्टिवेटेड चारकोल, it contains small packets of activated charcoal. What activated charcoal does? It absorbs the poisonous gases. उसको मुंह में पहन लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं जितने सारे पॉइजनस गैसेस, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो, H2S हो, तुम्हारा फॉस्फिन हो, अमोनिया हो, HCl, अगर ऐसे कई सारी पॉइजनस गैसेस हो एयर में, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन छोड़ के, they are absorbed on the surface and it removes or filters the poisonous gases and it lets in the oxygen, hydrogen, nitrogen or pure air for breathing, and by that way we protect our life. Used as a gas mask, बहुत important use है। Second, as a dehumidizer. Dehumidizer आपने देखा है कभी, आप लोग देखे होंगे कभी, जो मेडिसिन हम खरीद रहे हैं ना, जो मेडिसिन का जो पैकेट, जो छोटा सा डिब्बा हम खरीद रहे हैं, उसके अंदर में देखो एक छोटा सा पैकेट है, उसके अंदर में पड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक कि कंप्यूटर हो या तुम्हारा लैपटॉप हो या कोई टीवी हो, मोबाइल ही जब हम खरीदते हैं, व्हेन वी परचेज दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यू फाइंड ए स्मॉल पैकेट इज पुट इनसाइड दैट packet or package, and that small packet contains glass like hard substances. It looks very transparent, like very hard substances. They are nothing but silica gel or alumina gel. Why they are placed there? उनका रखने क्या वजह है? Because they control the humidity, they absorb the moisture present inside that container. अगर air and keep the air dry, remove the moisture and make the air dry so that the electronic gadgets remain safe for a long time. उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। डिह्यूमिडाइजर इतना ही नहीं, जो केमिकल्स स्टोर करते हैं, मेडिसिन जो स्टोर करते हैं ना, उसके अंदर में भी वही सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल की कई पैकेट्स चारों तरफ दीवार में रखते हैं, ताकि घर में जो मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी, उसको कंट्रोल करें और हमारा सारी की सारी दवाई हो या केमिकल्स हो, वो सुरक्षित रहे, बहुत दिन तक सुरक्षित चले। ठीक है, ये रहा सेकंड, डिह्यूमिडाइजर। और हाई वैक्यूम पंप भी हम क्रिएट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू। हाई वैक्यूम पंप क्रिएट कर सकते हैं। वैक्यूम पंप कैसे बनाते हैं भाई? मान लो एक ट्यूब है, सील्ड ट्यूब है, कोई वैक्यूम पंप उसमें लगा दो, वो इसके अंदर में जितना सारे एयर से जितने पॉसिबल खींच के निकालेगा। निकालने के बाद क्या होगा, उसके अंदर में और कुछ एयर फिर भी रह जाएगा। प्रेशर तो ऑलरेडी लो हो चुका है, फिर भी कुछ एयर अगर उसके अंदर में रह जाता है तो उसको निकालने के लिए और फिर वैक्यूम बढ़ाने के लिए उसके अंदर में क्या करेंगे हम, कुछ चारकोल को लिक्विड एयर में कूल करें। लिक्विड एयर का टेम्परेचर जानते हो -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस में उसी चारकोल को रखो, इतना कूल हो जाएगा, उसके बाद उसमें डाल दो। डालने से क्या होगा, at -196 degree Celsius, that charcoal will absorb whatever little quantity of air is present inside that vessel or inside that chamber. अगर सारे के सारे एयर को खींच लेगा तो बताओ हाई वैक्यूम क्रिएट होगा ना? नहीं, वो एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। बड़ी गजब की एप्लीकेशन से। फोर्थ वन, डीकलराइजर। जैसे कि शुगर जूस, जैसे हम शुगर जैसे बनाते हैं ना, शुगर केन से जो जूस निकलता है ना, उससे थोड़ा सा कलर्ड इम्प्योरिटी रह जाता है। कलर्ड इम्प्योरिटी अगर रह जाएगा तो जो शुगर बनेगा तो कलर ही होगा ना। कलर्ड शुगर कौन भाई परचेज करेगा? तो उसमें क्या करते हैं, बोन चारकोल या एनिमल चारकोल डालते हैं। बोन चारकोल या एनिमल चारकोल डालते हैं ताकि जो कलर्ड इम्प्योरिटी हो, सारी के सारी इम्प्योरिटी को खींच के ले जाता है। ठीक है, और शुगर जो सब कलरलेस हो गया, तो जो शुगर बनेगा वो अच्छा सा शुगर ही बनेगा, कलरलेस शुगर बनेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जो एप्लीकेशन है एब्जॉर्प्शन का, ये है प्लांट में भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से। प्लांट देखो जितने न्यूट्रिएंट्स है ना, वो पानी में डिजॉल्व है। पानी में डिजॉल्व
जो ग्राउंड वाटर है उसमें डिजॉल्व हुआ है। सारे न्यूट्रिएंट्स मीन्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, ये तो मेन फूड, दीज आर द मेन फूड्स ऑफ अ प्लांट। इनके सारे कंपाउंड्स डिजॉल्व स्टेट में रहते हैं। जो व्हेन प्लांट absorbs these nutrients on its root surface, right? रूट तो पानी के अंदर में चला जाता है, सो रूट इसी जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको खींच के और ऑब्जर्व कर लेता है पहले। सो आफ्टर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस, later on they penetrates into the root and move inside the plant and provides the nutrients. So absorption through से भी प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कलेक्शन कर रहा है, राइट? डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि आजकल जो मेडिसिन में हो, किसी भी में जो वाटर यूज हो रहा है तो डीमिनरल मीन्स उसमें कोई मिनरल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड वाटर हो, किसी भी कहीं से भी हम वाटर ले रहे हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स हैं। तो मिनरल कैसे निकाला जाएगा? तो हमारे का आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, जो कलम होते हैं उसी मिनरल वाटर को उसी कलम के थ्रू पास किया जाता है। पहला कलम क्या करता है, जो उसमें जितने काटायंस हैं, सॉल्ट के जो जितने सारे मेटल्स हैं, उसी मेटल को ऑब्जर्व कर लेता है। सुनो ध्यान से, सारे के सारे मेटल काटायन को ऑब्जर्व कर लेता है और H+ आयन छोड़ देता है। दूसरी कॉलम में जब वो फिर पास करता है तो जितने सारे आनायंस है उसके पास, आनायंस सॉल्ट मीन्स काटायंस और आनायंस है, सारे के सारे आनायंस को पकड़ लेता है, OH- को छोड़ देता है। तो H+ OH- कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। और जितने सारे मिनरल्स है, मिनरल के काटायन यहाँ ऑब्जर्व हो गया, आनायन यहाँ ऑब्जर्व हो गया, पानी चला गया और काटायन की जगह में H+, आनायन की जगह में OH-, वो फिर मिलके वाटर बना ली और डी मिनरल हो गया। मन की सारी जो डिजॉल्व सॉल्ट वो निकल गए। ये ऑब्जर्प्शन का ही चमत्कारिता है। और ये जो हमारा घर में एक्वागार्ड, केंट जो भी हम यूज कर रहे हैं ना, वही तो हो रहा है, वही ऑब्जर्प्शन की प्रोसेस है, तो हमको प्योर वाटर मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, भयंकर एप्लीकेशन, मजा आ रहा है ना एप्लीकेशन से सुन के। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस का मतलब क्या है? GC वाटर, द वाटर, सी वाटर इज हार्ड वाटर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्ड वाटर नेवर फॉर्म्स फोम और लेथर विथ सोप। कितना भी सोप उसमें डाल दो समुद्र पानी में, तुम जाके साबुन से कितना भी नहा लो, जो बबल नहीं फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दे मेक द सॉल्ट द वाटर हार्ड मीन्स प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, उसको भी निकालेंगे। अगर जिस जगह में हम रह रहे हैं वहां पे जो पानी है ना, खारा पानी, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है तो वो पानी तो कुछ नहीं, बेकार है, कुछ यूज भी नहीं हो सकता है। क्या करें हम? वहां पे जियोलाइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जियोलाइट। व्हेन दैट हार्ड वाटर पासेस थ्रू द जियोलाइट सरफेस क्या करता है? उसको पकड़ के ले लेता है, खींच लेता है। कैल्शियम इधर आओ, मैग्नीशियम इधर आओ, और सारे आयन को छोड़ देता है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन अगर वहीं से रिमूव हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हार्डनेस इज रिमूव्ड एंड वी गेट सॉफ्ट वाटर, राइट? नेक्स्ट इज अनदर इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। वो गजब के एप्लीकेशन, जो डिटर्जेंट और सोप, दे शो क्लीनिंग एक्शन। हाउ we have already studied in solution state. The soap or detergent, they are adsorbed on the interface, जहां पे मैला है ना, गंदगी है, that on that interface they are adsorbed and remove the surface tension between the cotton and the dirt, और oily particle and water, दोनों के बीच में जो surface tension है उसको remove करते हैं by adsorption on the surface, ठीक है? Then if surface tension is removed or is eliminated, then automatically it will enhance your cleaning action. उसमें liquid state में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? In chromatography technique, chromatography is the most advanced technique, scientific technique, where if a mixture contains many organic compounds, many samples, they can be isolated, they can be separated, उनको हम सेपरेशन कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्योर स्टेट में पा सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो तो कमाल का चीज है, वो तो बहुत एडवांस टेक्निक क्रोमेटोग्राफी।
and that chromatographic technique is purely based on adsorption principle, because different components are adsorbed on this adsorbent to different extents. The component which is strongly adsorbed get adsorbed on the top. The component which is least adsorbed is adsorbed at the bottom, and by using suitable solvent we can remove them one by one in the purest form. Process of separation, identification and characterization can be done by adsorption process, that is your chromatography technique, right. Next, let us move to catalyst. What is catalyst? What are the catalysts? क्या काम है catalyst का? Catalysts are the chemical substances. Chemical substances which alters or changes the speed of a reaction. Reaction का speed change करेगा without changing its own composition, own properties and own structure. अपना कुछ चेंज नहीं होगा, अपने अंदर में कुछ बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो रिएक्शन दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन अगर हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, उसमें वो तेजी लाएगी. इट विल इंक्रीज द रिएक्शन स्पीड और इट में डिक्रीज द रिएक्शन स्पीड. रिएक्शन स्पीड को चेंज करेगा. लेकिन देखो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनना है वही तो बनेगा, लेकिन रिएक्शन स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है. लेकिन अपना जो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, it will never be changed. So it is the chemical substance which alters the rate of reaction without changing its composition and its character, right. जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं. देखो जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट ले लो, KClO3. पोटेशियम क्लोरेट को हीट करो because it is a good source of oxygen, right. Potassium chlorate KClO3, if you heat it without any catalyst, you will get 2 KCl plus 3 O2, but reaction is slow, it takes some time. But if you heat it with in presence of manganese dioxide as a catalyst, reaction become very fast, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी, माने इतने रफ्तार से रिएक्शन होगा, चंद सेकंड से वो खत्म हो जाएगा. सो मैंगनीज डाइऑक्साइड हियर इज द कैटलिस्ट. ऐसे कई कैटलिस्ट हम घर में भी यूज करते हैं. जैसे मान लो हम दाल पका रहे हैं, दाल नहीं पक रहा है किसी रीजन की वजह से, हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा माँ डाल देता है ना, थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट, सी जस्ट पुट्स इन दैट दाल एंड दैट दाल इज गेटिंग बॉइल्ड वेरी इजीली. तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हम जानते हैं ना, ठीक है. इट इज ए कैटलिस्ट, राइट. सो कैटलिस्ट व्हाट आर द, ऐसे ही तो बहुत सारे कैटलिस्ट में कई सारे एग्जाम्पल भी रखूंगा आपके सामने में ताकि अच्छी से समझ में आ जाए. कैटलिस्ट का कैरेक्टर क्या है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैरेक्टर और व्हाट आर द बिहेवियर और नेचर ऑफ अ कैटलिस्ट, उसका कैरेक्टर क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है. देखो कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड. मैंने पहले से कहा था कैटलिस्ट की यही तो डेफिनेशन है कि खुद का कुछ नहीं होगा, दूसरे का चेंज कर देगा. सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन इट्स मास, इन इट्स कंपोजिशन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देगा, खुद नहीं बदलेगा, वो करवाएगा. टीचर इज लाइक ए कैटलिस्ट. टीचर्स आर ऑल कैटलिस्ट्स. दे गिव्स शेप टू द कैरियर और फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स. खुद का कुछ चेंज नहीं होता है, उनका तो जो होना था हो गया. दे आर मोटिवेटर्स, दे आर एक्सीलरेटर्स, दे एक्सीलरेट, दे मोटिवेट, इंस्पायर. इन दिस वे, like in this way, catalyst also does the same thing, right. Second thing, small quantity of catalyst. A good catalyst is the one which is taken in small quantity and does big thing. थोड़ा सा क्वांटिटी उसका चाहिए, ठीक है. गुड कैटलिस्ट इज द वन which should be used in small quantity के हिसाब से उसका यूज होना चाहिए. थर्ड, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन. वो कभी किसी रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता. इनिशिएटिव कैन नॉट इनिशिएट. अगर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट नहीं कर सकता है. अगर रिएक्शन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, उसमें वो तेजी लाएगी. और किसी रिएक्शन मतलब कि बड़ी तेज रफ्तार से हो रहा है,
इतने रफ्तार से नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए नुकसान है, उसको स्लो कर देगा, रफ्तार चेंज करेगा, कैन नॉट इनिशिएट। लेकिन हाँ ऐसी बात है, इफ कैटालिस्ट पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे कैटालिस्ट दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, पहले कंज्यूम हो जाते हैं, पहले खर्च हो जाते, कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन में, समा जाते हैं रिएक्शन में, लेकिन अंत में वो रीजेनरेट होंगे ही होंगे। At last they will be regenerated. If they participate in the reaction and consumed at any step of the reaction, finally they will be regenerated, so that their composition, properties, everything remains as such, right? Catalyst is more effective. Catalyst is more effective when it is used in divided state, means powder state. If you put one catalyst like this, and if you break this catalyst into 4 or 5 pieces, or if you break down into powder form, it will be more effective. Why? Because if you break it down into small pieces, it will increase the surface area. catalyst की surface area बढ़ जाएगी, catalyst की surface area बढ़ेगी तो rate of reaction बढ़ेगा. So effective catalysts are those in which when they are used in a powder form or in a divided form, right? And catalysts are highly specific in action, highly specific in action. एक ही catalyst एक ही reaction को catalyze करेगा. Same catalyst cannot catalyze all the reactions. There is no universal catalyst in दुनिया में कोई ऐसा catalyst नहीं है जो हर reaction को catalyze कर सकता है, ऐसा नहीं है. Catalysts are highly specific, एक particular reaction को catalyze करेगा, दूसरे को नहीं करेगा. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाबर्स प्रोसेस में जब अमोनिया सिंथेसिस होता है वो पोरस आयरन ही यूज होता है. पोरस आयरन, वो आयरन ही उसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, उसके जगह में कोई दूसरा कैटालिस्ट काम नहीं करेगा और आयरन और किसी में भी यूज नहीं होगा. पर्टिकुलर इसी रिएक्शन में वही कैटालाइज कर सकता है. ठीक है, हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. इट कैनॉट कॉज और डू द, इट कैनॉट बी यूज्ड एज कैटालिस्ट फॉर मेनी रिएक्शंस. अगर ऐसा होता तो मान लो हमारा सारी की सारी मुसीबतें और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा स्क्रीन पर देखिए. फॉर्मिक एसिड हमने लिया, अगर उसको कॉपर मेटल उसमें डाल दिया, कॉपर मेटल डाल के उसको हीट किया, देखो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है. और वही फॉर्मिक एसिड को लेके हम अगर एल्यूमिना के साथ हीट करेंगे, हमको मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर. देखो कॉपर क्या कर रहा है, उसको तोड़ के हमको बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है. वैसी रिएक्टेंट को एल्यूमिना क्या कर रहा है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर दे रहा है. तो दे आर हाईली स्पेसिफिक. जो कॉपर जो काम कर रहा है वो काम एल्यूमिना नहीं कर सकता है, एल्यूमिना जो काम कर रहा है कॉपर नहीं कर सकता है. ठीक है, तो इसीलिए ईच कैटालिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन. और एंजाइम तो एंजाइम्स और बायो कैटालिस्ट, वो एंजाइम कैटालिस्ट तो तुम्हारा सिलेबस से हटा दिया गया. 30% जो कोरोना की वजह से रिडक्शन हुई है सिलेबस में, उसके वजह से उसको हटा दिया गया. तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बोलते थे. एंजाइम्स आर ऑल्सो बायो कैटालिस्ट, लेकिन जो एंजाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में काम कर रहा है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकता है. सो एंजाइम्स और ऑल कैटालिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन एक्शन. एंड रेट ऑफ अ कैटालिटिक रिएक्शन कैन बी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, लाइक रिएक्शंस विदाउट कैटालिस्ट. मान लो किसी रिएक्शन हम ले रहे हैं, उसी रिएक्शन को स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसी रिएक्शन का रफ्तार फिर भी हम बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. जैसे कि कैटालिस्ट का जो रोल होता है अलग होता है, वो खुद ही रिएक्शन का स्पीड को चेंज करता है. और कैटालिस्ट यूज करो या ना करो, लेकिन टेम्परेचर का जो रोल है रिएक्शन के स्पीड की बढ़ाने की या घटाने की, वो रोल ऐसा ही रहेगा. तुम कैटालिस्ट यूज करो या ना करो. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट, कैटालिस्ट कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट का नेचर नहीं बदला सकता है. कैटालिस्ट यूज करो या ना करो, अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा
जो प्रोडक्ट बनेगा, जिसी क्वालिटी का, जिसी कैरेक्टर का प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट बनेगा, वही क्वालिटी का, वही नेचर का प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का नेचर को कभी नहीं बदला सकता है, कैटालिस्ट यूज करो या ना करो, राइट। अनदर जी, कैटालिस्ट कैनॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बड़ी गजब की बात है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहां से होता है भाई? इक्विलिब्रियम स्टेट कहां से पैदा होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स and the products are also converted into reactants, ठीक है। So at a stage comes where the rate of a forward reaction becomes equal to rate of a backward reaction। उसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अटेंड। एंड एक इक्विलिब्रियम केसी हो, केपी हो, केएक्स कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम वैल्यू इज हम जानते हैं कि जैसे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। अगर कैटालिस्ट हम यूज करेंगे तो वही जो केसी, केपी, केएक्स जो भी है उसका वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। बात ऐसा है, कैटालिस्ट यूज नहीं करेंगे तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉर्मेशन होने में थोड़ा सा देर होगा, इट विल टेक सम टाइम। अगर कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का स्पीड वो बढ़ाएगा। तो दैट इज व्हाई द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू विल रिमेन सेम, बट इट कैनॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैनॉट बी चेंज्ड। And catalyst, its catalytic property can be enhanced by some substances called as promoters. Promoters are not catalyst. पेप्सी, कोका कोला जैसे जो मान लो तेंदुलकर तुम्हारा पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट कराए, थोड़ी ना वो बेच रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, मीन्स सेलिंग बढ़ा देगा। सो इसीलिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कैटालिस्ट की जो कैटालिटिक एक्टिविटी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं कि कैटालिटिक प्रोमोटर्स। बट प्रोमोटर्स आर नॉट कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट नहीं है, प्रोमोटर का कोई रोल नहीं है। अगर कैटालिस्ट डाला, जिस स्पीड से वो रिएक्शन को चेंज कर रहा है, अगर प्रोमोटर्स हाथ में आ गया, ठीक है, किसी कंपनी में किसी ने आड़ दे दिया, कोई फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार प्रोमोटर के रूप में आ गया, तो सेलिंग बढ़ेगा, मीन्स सेलिंग का जो स्पीड रफ्तार बढ़ेगा, तो कैटालिस्ट का जो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। उसी तरह उसको कहते हैं प्रोमोटर। उसी तरह और कुछ भी सब्सटेंसेस ऐसा भी है, कुछ सब्सटेंस ऐसा भी है जिसको डालोगे तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, एफिशिएंसी को भी घटा देगा, रिड्यूस करेगा। सो देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच पॉइजन, दे आर कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन क्वेंचर कहते हैं उनको, जो कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन, ठीक है। सो कैटालिस्ट जैसे कि तुम जानते हो कि provides alternative path, catalyst provides alternative path of reactions to proceed. Either they will increase the activation energy or they will reduce the activation energy. So example, Haber's process मैंने बताया, any contact process of manufacturing of sulfuric acid, vanadium pentoxide or platinum asbestos is used as a catalyst. Okay. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिस्ट। हम कैटालिस्ट के बारे में बहुत सारे बातें चर्चा कर चुके हैं, अब बारी है कि क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन मेनली वी डिवाइड द ऑल द कैटालिस्ट्स इनटू टू पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स, और फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे कि होमोजेनस कैटालिस्ट एंड हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, द प्रोसेस वेयर कैटालिस्ट आर यूज्ड, और जिस प्रोसेस कैटालिस्ट की वजह से हो रहे हैं, द प्रोसेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ अ कैटालिस्ट आर कॉल्ड एज कैटालिसिस। द रिएक्शंस दैट आर कैटालाइज्ड बाय कैटालिस्ट आर कॉल्ड एज कैटालिसिस। सो कैटालिसिस तुम्हारा होमोजेनस हो सकते हैं और हेटेरोजेनस। सो कैटालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस कैटालिसिस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस प्रोसेस। और कैटालिस्ट आर आल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप्स, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस कैटालिस्ट और होमोजेनस कैटालिसिस क्या है, ध्यान से सुनना। होमोजेनस मीन्स इफ ऑल द रिएक्टेंट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द कैटालिस्ट
remain in same physical state, remain in same physical state, सारे के सारे गैसेस या सारे के सारे लिक्विड्स अगर एक ही फिजिकल स्टेट में सारे के सारे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट अगर एक ही है तो उसी कैटालिस्ट को हम कहेंगे होमोजेनस कैटालिस्ट, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज होमोजेनस कैटालिसिस। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे एग्जांपल्स दे आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर इट इज ए लिक्विड, पानी डाला उसमें वो भी लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड we are adding to it, it is a liquid, and the product we get is your acetic acid, or you if you take ethyl acetate you will get acetic acid, if you take any ester you will get carboxylic acid and alcohol. Carboxylic acid is a liquid, alcohol is also liquid, products are liquid, reactions are liquid, sulfuric acid is a liquid. So it is a beautiful example of a homogeneous catalysis in contact process of a मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। गजब का एग्जांपल है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एक स्टेज में, 3 स्टेज में होता है प्रिपरेशन, एक स्टेज में होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वी आर यूजिंग ए कैटालिस्ट, वैनेडियम पेंटॉक्साइड वो तो अलग बात है। और एक कैटालिस्ट देखो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन के साथ वो भी गैस, SO2 O2 वी गेट SO3, SO3 इज द प्रोडक्ट, वो भी गैस है। लेकिन यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है? कैटालिस्ट होता है यहाँ पे NO, that nitrogen oxide, that act as a catalyst. सल्फर डाइऑक्साइड cannot oxidize automatically, it cannot combine oxygen, वो ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है, उसका नहीं ले सकता ऑटोमेटिकली। जो NO है ना वो गैस है, वो NO एयर से ऑक्सीजन को खींच के लाता है, खींच के ले आता है और उसको खिला देता है। जैसे कोई माँ चिड़िया है ना, वो कहीं से दाना लेके अपने बच्चों को खिलाता है ना, उसी तरह NO को खींच के लाता है, पकड़ के लाता है, NO2 बनता है और वो NO2 SO2 को ऑक्सीजन देके उसको SO3 बनाता है। तो हियर SO2 O2 NO2 and SO3 all are in same physical state. This is also a beautiful example of homogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis, अभी जो बोर्ड में मैंने लिखा है जो एग्जाम्पल देखो, ये हेट्रोजेनस कैटालिस्ट मीन्स द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड ए कैटालिस्ट आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट, दे आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। इसमें कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड में रहा होगा, किसी ने गैसियस स्टेट में रहा होगा। कम से कम 2 फिजिकल स्टेट्स होंगे, कम से कम मिनिमम 2 फिजिकल स्टेट अगर रिएक्शन के अंदर में पाए जाते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटालिस्ट को लेके, उसको हम कहेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस और कैटालिस्ट और हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। जैसे कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन इथीन, इट इज ए गैस, हाइड्रोजन इज आल्सो गैस, एंड यू यूज platinum, palladium, nickel, they are all solids. Product is gas, reactant is gas, product is gas, but catalyst is solid, right? So it is a heterogeneous catalyst, and the process is a heterogeneous catalysis. Again, on the basis of their action, they can be classified as positive catalyst, negative catalyst, auto catalyst, induced catalyst. ठीक है, होमोजेनस हेटेरोजेनस, वो दोनों क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो फिर क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ उनके देयर एक्शन, काम के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें, काम के हिसाब से। पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, स्वयं कैटालिस्ट है, और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। गजब की एग्जांपल से देखो, पॉजिटिव कैटालिस्ट किसको कहते हैं भाई? पॉजिटिव कैटालिस्ट, बहुत लोग कहते हैं पॉजिटिव सोच हमेशा रखते हैं, कुछ भी कितना भी तुम उनको बुरा भला कहो, वो तुम्हारे बारे में हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी विचार रखते हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव माइंडेड पर्सन होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट ऐसे ही होता है क्या? इट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का स्पीड बढ़ा रहा है, रफ्तार बढ़ा रहा है, ठीक है। और जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट हो, ये रहा, जितने सारी एग्जाम्पल मैंने दिया वो सारे के सारे तुम्हारा पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, जो which accelerates the rate by lowering the activation energy, lowering the activation chemical kinetics and
केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, हम्प्स है ना, हम्प्स का जो हाइट ही कम करते हैं, इसलिए गाड़ी का रफ्तार बढ़ जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्पीड को, रफ्तार को कम कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होता है, लेकिन उसका बहुत सारी उपयोग होता है, लेकिन अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव हीट एंड लाइट, जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए उसको इसमें क्या डालते हैं, फास्फोरिक एसिड डालते हैं या एसिटाइनिलाइट डालते हैं, ताकि जो डिकम्पोजिशन का रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन तो वो चला जाएगा, पानी रह जाएगा, इसीलिए उसमें फास्फोरिक एसिड हो, एसिटाइनिलाइट ऐसे डालते हैं, ताकि तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। उसको कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट मीन्स बाहर से कोई कैटलिस्ट हम नहीं डालते हैं, बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डालते। जैसे कि जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसी प्रोडक्ट से खुद वो चला आता है और वही प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जैसे कि दुनिया में कई माँ बाप है ना, वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं और कोई बड़ा बेटा बड़ा बेटी वो कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली, वो अपनी सारे के सारे भाइयों को और बहनों को आगे बढ़ाती है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे कि हाइड्रोलिसिस स्टार, देखो बड़ी गजब चीज, एसिड चाहिए, अगर एसिड नहीं दिया तो क्या हो गया, मान लो थोड़ा सा स्टार अगर हाइड्रोलिसिस हो गया ना, तुम्हारा बन गया अल्कोहल और एसिडी। वो जो एसिड बन गया वही एसिड उसी रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। हम बाहर से नहीं दे रहे हैं, खुद ही कुछ प्रोडक्ट कैटालिस्ट की तरह काम कर रहे हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रोलिसिस स्टार, जो एसिड बन रहे हैं प्रोडक्ट, वही एसिड रिएक्शन को आगे लेकर जा रहा है, इट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। सो दिस इज कॉल्ड auto catalyst, that is the product, what are the product formed in the reaction acts as a catalyst. And in the last induced catalyst. Induced catalyst means there are some reactions which cannot take place automatically, but some reactions they are taking place naturally. जैसे कि सोडियम सल्फाइड हमने लिया, वो तो मान लो कि फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन सोडियम आर्सेनेट लिया वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई गधा बच्चा अगर कोई अच्छी बच्चे के पास में रहेगा तो उसका तो असर उसके ऊपर पड़ेगा ना, मदद तक करेगा ना। सोडियम सल्फाइड के साथ अगर सोडियम आर्सेनेट को हम रखेंगे तो सोडियम सल्फाइड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको भी मदद कर रहा है। उसको कह रहे कि इंड्यूस्ड, खुद ही हो रहा है और दूसरे को भी करवा रहा है। ये रहा बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड जो डिकलराइज करते हैं ना, हम किसके साथ में, ऑक्जालेट के साथ, ऑक्जालेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट डिकलराइज हो जाता है। और मैंगानीज Mn+2 जब शुरू में थोड़ा सा डिकलरेशन धीरे धीरे होगा, और जैसे जैसे मैंगानीज +2 फॉर्मेशन होगा ना, वो डिकलरेशन रैपिड हो जाएगा। ये एक कैटलिस्ट होता है, उसको तो कहते हैं हम ऑटो कैटलिस्ट या इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। आई होप ये सारे के सारे बातें आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड ऑल टुडेज क्लास एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास टिल द एंड।